Friends, now we are moving towards to the example number 21 of the exercise lesson number 4, chemical kinetics, subject chemistry, 12th English medium. And the question is, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at a constant volume. The equation is given to you. SO2Cl2 gas gives SO2 gas plus Cl2 gas. These are the experiment number 1, 2. Time is given to in seconds and the pressure is given to you in atmosphere 0.5, 0.6. And the question asks you, calculate rate of reaction when total pressure is 65 atmosphere. Friends, this is the similar numerical like exercise number 20 जो अभी हमने आगे किया है, उस तरह से ही न्यूमेरिकल को हमको अटेम्प्ट करने का है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इक्वेशन. SO2Cl2 gas gives SO2 gas plus Cl2 gas. Now friends, initial. What about initial pressure? So we assume that it is P0 and there is no product is obtained when the reaction is beginning. Now friends, used. तो we assume that it is X used, तो ये X प्रोड्यूस होगा, ये भी X प्रोड्यूस होगा. Why X is to X लिखा? Because the stoichiometric relation is 1 is to 1 is to 1. 1 is to 1 is to 1. So X is to X is to X. Now remain at equilibrium. So here we can write P0 minus X, X and X. क्यों P0 minus X किया friends? Because as the time progresses, concentration of the reactant decreases. तो P0 minus X और ये increase होगा तो X और ये भी क्या होगा X. Now friends, we have to find our P total. So P total is equals to P of SO2Cl2 gas plus P of SO2 gas plus P of Cl2 gas, because all are in gaseous phase and they find at equilibriums, my dear friend. तो P0 minus X plus X एडिशन कर दिया. This X going to be cancel out. तो P0 plus X ये हो गया आपका P total. Now the experiment 1 and 2, यहाँ दो ही experiment दिए हैं. P total आपको दिया है 0.6, तो यहाँ मैं लिखूंगा कितना 0.6. इनिशियल प्रेशर आपके पास अवेलेबल है कितना 0.5. तो आप X दे सकते हो फ्रेंड्स. X इज इक्वल टू क्या होगा 0.6 minus 0.5 is equals to 0.1. Now friends, what about R0? तो R0 मेरे पास है 0.5 atm atmosphere. And what about RT? तो RT is equals to ये रहा आपका RT P0 minus X. तो P0 मेरे पास है 0.5 और X का आंसर है 0.1. ये दोनों का डिफरेंस होगा 0.4. यहाँ यूनिट लिखूंगा एटमॉस्फेयर. Now friends, we have to use the formula of the rate constant K is equals to 2.303 by T log of R0 by RT. Log of R0 by RT. What about time? 2.303. Here we can get the interval of time 100 minus 0. Log of R0. ये रहा आपका log of R0 0.5. And what about log of RT? ये रहा आपका log of RT, it becomes 0. तो फ्रेंड्स अगेन जो आगे वाले न्यूमेरिकल में किया था ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो पहले 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4. 0.5 डिवाइडेड बाय क्या किया 0.4, तो ये आपका आंसर है 1.25. इसका लॉग देखेंगे फ्रेंड्स. लॉग देखने का मैंने कैलकुलेटर में सिखाया आपको. 13 टाइम्स रूट का बटन दबाने. कितनी टाइम्स? 13 टाइम्स यू हैव टू प्रेस द बटन ऑफ रूट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 minus 1 into 3558 is equals to ये आपका लॉग का वैल्यू आ गया. तो 2.303 डिवाइडेड बाय 100. इसका लॉग का आंसर है 0.0969. अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइडेड बाय 100. आंसर आया कितना 0.002232.
डेसिमल को हम 1 2 3 राइट साइड मूव करेंगे तो k का आंसर क्या आएगा, therefore k is equals to 2.232 into 10 raised to minus 3। यहाँ यूनिट टाइम का सेकंड इनवर्स है, तो k का यूनिट क्या होगा दोस्तों, k टाइम से डिवाइड किया तो सेकंड इनवर्स। ओके, तो आपको k मिल गया दोस्तों। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों अगेन इंस्टेड ऑफ 0.6 आई हैव टू यूज 0.65। तो यहाँ पे अपने पास जो था P total is equals to P0 plus x। तो अब x क्या होगा दोस्तों, तो P total है अब आपके पास 0.65, ये रहा। आपको गिनने का पूछा है ये प्रेशर के ऊपर, और आपके पास P0 है 0.5, ये डिफरेंस होगा 0.15। ओके दोस्तों, अब आपको P of SO2Cl2 गिनना पड़ेगा। जब 0.65 एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसको हम बोलेंगे RT। क्या बोलेंगे, RT। तो RT कैसे गिना था, तो ये रहा RT, P0 minus x। ओके, P0 कितना था आपके पास 0.5, ये रहा, और x कितना आया अब कितना, तो 0.15। ये डिफरेंस हो गया कितना दोस्तों, 0.35 एटमॉस्फेयर ATM। एंड नाउ फ्रेंड्स वी हैव टू कैलकुलेट रेट। रेट इज इक्वल्स टू k इनटू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ P ऑफ SO2Cl2। k का आंसर था आपके पास 2.232 into 10 raised to minus 3 and your pressure is 0.35। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर मिलेगा 0.35। तो आंसर इज 0.00078। डेसिमल को 1 2 3 4 यहाँ ले लो, तो 7.8 into 10 raised to minus 4, ये आया आपका रेट। इसका यूनिट था सेकंड इनवर्स, इसका यूनिट है एटमॉस्फेयर, इसका यूनिट बनेगा एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये पूरा न्यूमेरिकल वापस एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इक्वेशन था SO2Cl2 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन प्रेशर में एज्यूम कर लिया P0। प्रोडक्ट का कुछ था नहीं शुरुआत में, जैसे टाइम बढ़ा ये x यूज हुआ तो ये दोनों x प्रोड्यूस हुए बिकॉज़ स्टोइकियोमेट्रिकल रिलेशन इज 1:1। अब क्या किया रिमेन, मतलब जो शुरुआत का था उसमें से जो यूज्ड हुआ वो उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो P0 minus x, ये x और ये भी x। अब P टोटल मतलब ये सब का एडिशन किया, x कैंसिल आउट हो गया, तो P टोटल इज इक्वल्स टू P0 plus x। उसके ऊपर से मैंने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो P टोटल मेरे पास था 0.6 और 0.5 x मिल गया। x के ऊपर से मैंने गिन लिया क्या RT, P0 minus x करके। ओके, R0 था, RT मिल गया, तो मैंने k का फॉर्मूला यूज करके सिंपलीफाई करके किसका वैल्यू लेके आया, k का। अब क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। तो अब मैंने यहां से शिफ्ट होके 0.6 की जगह पे क्या लिया 0.65, तो x का वैल्यू मिल गया। x कितना मिला 0.15। ओके, अब P of SO तो मतलब RT गिनने का था, RT कैसे गिनूंगा, P0 minus x। तो यहाँ मैंने किया था 0.5 minus 0.1, या करूंगा 0.5 minus 0.15, क्योंकि अब मेरे पास x कितना है 0.15, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 0.35 मिला। रेट गिनने का था, द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल्स टू a into P of SO2Cl2। k का वैल्यू ऑलरेडी डिराइव किया हमने, और SO2Cl2 ये था, दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये अपने सामने आंसर है। तो याद रखो जब भी आप एग्जाम में लिखते हो तो जो आपके मेन आंसर आता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसने यहाँ तक सही कैलकुलेशन किया है। दूसरी बात, ऐसे प्रॉपर्ली लिखिए, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखिए। अगर राइटिंग थोड़ी 19 बेसिक तो चलेगा, लेकिन स्पेशियस लिखा होगा तो अपने आप रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को यहाँ रोक के आप अच्छी तरह से उसको गिनो, एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।